ओके गाइस, तो अब जो क्वेश्चन पेपर है वो है इंग्लिश के लिए, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन पेपर है जिन्होंने सीटेट 28 दिसंबर का जो पेपर है वही है, ठीक है। लेकिन इसमें इंग्लिश क्या होगी, लैंग्वेज 2। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। The city of Aurangabad was named after the infamous Mughal emperor Aurangzeb, and no visit to the city is complete without a visit to his tomb. जो सिटी है औरंगाबाद, उसका नाम दिया गया था मुगल एम्परर किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। और कोई भी बंदा जो सिटी को घूमने जाता है ये तब तक इनकम्प्लीट है जब तक कि आप उस टुम्ब को नहीं देखते। डिवॉइड ऑफ एनी आर्किटेक्चरल एक्स्ट्रावेजेंस, द टुम्ब रिफ्लेक्ट्स द austerity and the characterized Aurangzeb and his reign. Among the several historical monuments that Aurangabad boasts of is of Daulatabad Fort, located 16 kilometers northwest of Aurangabad in Daulatabad, also known as Deogiri. Muhammad bin Tughlaq had shifted his capital here, which was later relocated to Delhi. The fort is bare and reflects the bareness of the land around it. The importance of the fort lay on its extraordinary strength, the igneous way it was built to fight off enemies, and the mechanisms used to defend it. History testifies that his fort was never captured in battle, such was his brilliance. The view from the top of the fort offers tourists a sweeping view of surrounding land, rough, barren and rocky. At the summit there is also a specimen of a massive metal cannon, one of the few remaining metal cannon of its type. A tour of the fort can be quite an exhausting experience even in early February with the sun beating down through the arid atmosphere. A drink of nariyal pani or tender coconut water is refreshing and a must. After lunch we processed in Bibi ka Maqbara, built by Mughal Prince Ajam Shah in his loving memory of his mother Begum Rabia Durrani, wife of Aurangzeb. This monument was intended to be a replica of the Taj Mahal. Unfortunately, the monument is but a poor replica of the Taj Mahal, lacking the architectural brilliance and dazzling beauty of the unparalleled Taj. The mesmerizing craftsmanship that marked the architectural monuments of Akbar and Shah Jahan was pitifully lost in the later years of the Mughal reign. Bibi Ka Maqbara is an eloquent example, nevertheless the monument is worth a visit. It's only to understand this transition in Mughal architecture. बेसिकली इसमें बताया है कि जो औरंगजेब ने बनवाया था, जो औरंगाबाद है वो बेसिकली किसके लिए फेमस है, और जो औरंगजेब हैं उसके टुम्ब के लिए। बाद में उनके जो सक्सेसर हुए थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनवाई थी। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121, द टुम्ब ऑफ औरंगजेब इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पर्सनैलिटी एज इट इज़ फिल्ड विद एक्यूसाइट स्कल्पचर एंड पेंटिंग, it is barren and rocky, it is simple and stark without any ornamentation, it is full of mementos from his life. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज, ये सिंपल है और क्या है, स्टार्क है, बिना किसी ऑर्नामेंटेशन के, ठीक है। ऐसी ही पर्सनैलिटी किसकी थी, औरंगजेब की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, द दौलताबाद फोर्ट इज फेमस because of its massive cannon. It was never captured in a battle. Of its beautiful scenery, it is close to Aurangabad and Ajanta and Ellora caves. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये फेमस क्यों है दौलताबाद फोर्ट, क्योंकि ये कभी भी एक जो लड़ाई हुई थी बैटल उसमें कैप्चर नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, द आर्किटेक्चर ऑफ द बीबी का मकबरा हैज़ बीन बेस्ड ऑन द दौलताबाद फोर्ट, औरंगजेब टुम्ब, द हिस्टोरिकल मोनूमेंट ऑफ औरंगाबाद एंड द ताजमहल। जो बीबी का मकबरा है उसे हम क्या बोलते हैं, दूसरा ताजमहल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10124, प्रिंस आजम शाह वॉज द सन ऑफ अकबर, शाहजहां, मोहम्मद बिन तुगलक एंड औरंगजेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज औरंगजेब। जो प्रिंस आजम शाह हैं वो कौन थे, औरंगजेब के बेटे, जिन्होंने अपनी माँ की याद में क्या बनवाया था, बीबी का मकबरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, द राइटर एडवोकेट्स ए विजिट टू द बीबी का मकबरा टू। जो राइटर है वो बोलते हैं कि बीबी का मकबरा जो है वो देखना चाहिए, क्यों, स्टडी इट्स एक्यूसाइट क्राफ्ट्समैनशिप, स्टडी इट्स क्लोज रिजेम्बलेंस टू द ताजमहल, स्टडी द चेंजेस इन मुगल आर्किटेक्चर टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स राइन, स्टडी द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन इट्स आर्किटेक्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, स्टडी द चेंजेस इन मुगल आर्किटेक्चर टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स राइन, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126. द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इनफेमस, नोटोरियस, रेप्यूटेबल, ड्यूबियस एंड एविल. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2. जिसका बहुत ज़्यादा नाम होता है और जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है उसे हम बोलते हैं रेप्यूटेबल. और जो इनफेमस होता है ये जब कोई इंसान फेमस नहीं होता, ऑब्वियसली जिसके नाम के आगे से फेमस हट जाए, इनफेमस. ठीक है, सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 126. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127. द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड बैरन. बैरन मीन्स बंजर, फर्टाइल, लश, ड्राई और इनफर्टाइल. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, इनफर्टाइल मीन्स बंजर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128. अ ड्रिंक ऑफ नारियल पानी और टेंडर कोकोनट वाटर इज रिफ्रेशिंग. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2. इट्स ए वेरी सिंपल सेंटेंस कि नारियल पानी और टेंडर कोकोनट वाटर जो है वो रिफ्रेशिंग है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129. हैदी डिसाइडेड टू स्लीप इन द हे लॉफ्ट बिकॉज. ओके, ये दूसरा पैसेज है. तो इसमें बोला है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. ये पैराग्राफ आप पूरा पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसको पढ़ने में फिर टाइम लगता है. अगर आप पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद को भी बहुत इजीली मिल जाएंगे. जो हैदी है उसने डिसाइड किया था स्लीप इन द हे लॉफ्ट बिकॉज इट हैड ए लैडर टू गो अप, इट हैड ए heap of sweet smelling hay, it had a round window, it had a beautiful view of the valley. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4. जो हैदी है उसने हे लॉफ्ट जो है उसमें सोने का डिसाइड क्यों किया था, क्योंकि वहाँ एक ब्यूटीफुल व्यू था जो कि वैली से दिखता था. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130. द ग्रैंड फादर अनमेज्ड रमेज्ड इनसाइड हिज कवर्ड मीन्स ही लुक्ड फॉर समथिंग. जो ग्रैंड फादर है वो कवर्ड में क्या झांक रहे थे, क्यों, क्योंकि वो किसी चीज को देखना चाह रहे थे. इन एन अनटाइडी मैनर, मेटिकुलसली, सिस्टमेटिकली और स्टिल्थली. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1. एक जो अनटाइडी मैनर होता है, चीजों को जब आप फेंक फेंक के कोई चीज नहीं देखते हैं, दैट इज कॉल्ड योर रमेज्ड. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131. द अपोजिट ऑफ द वर्ड कोर्स एज यूज्ड इन द टेक्स्ट इज रफ, स्क्रैची, सॉफ्ट एंड रिफाइंड. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3. जो वर्ड होता है कोर्स, कोर्स मीन्स दरदरा, और इसका जो अपोजिट होगा वो होता है मुलायम, सॉफ्ट. दैट इज कैपिटल. दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिलाइट, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, एन एक्सप्रेशन ऑफ एनोयंस. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2. जो दैट इज कैपिटल ये क्या है, एक डिलाइटफुल मैनर में जब आप बोलते हैं तो वो एक एक्सप्रेशन होता है. जब हम बोलते हैं दैट्स माई मॉम, दैट्स माई सन, तो जब आप प्राउड होते हैं किसी चीज को लेके तो उसको बोला जाता है एन एक्सप्रेशन ऑफ डिलाइट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133. द फैक्ट दैट ग्रैंडफादर पुट अनदर बंडल ऑफ हे टू मेक हैदीज बेड थिकर शोज हिज लविंग कंसर्न फॉर हिज ग्रैंड डॉटर, हिज डोमिनेटिंग नेचर, हिज सेल्फलेसनेस, हिज पेशेंस टुवर्ड हिज ग्रैंड डॉटर. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2. 133 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. 132 किया हमने. ओके, सो 133 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. जो ग्रैंडफादर है उन्होंने क्या किया था, हैदी का जो बेड है उस पर जो घास फूस का बंडल नहीं लगा देते हैं जिससे कि वो थोड़ा मोटा हो जाए, वो क्यों किया था, क्योंकि वो अपनी पोती को बहुत प्यार करते थे और जो कंसर्न था उसकी वजह से. From the way Hedy prepared her little bed shows his resourcefulness, her diligence, her care for her grandfather, her joyful nature. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हर रिसोर्सफुलनेस, कि उसने कम सामान के होते हुए भी अपना जो छोटा मतलब बेड जो था उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर. द टू टुगेदर नाउ स्प्रेड द शीट ओवर द बेड. द टू टुगेदर नाउ स्प्रेड द शीट ओवर द बेड. द वर्ड अंडरलाइन इज एन. अब तुम दोनों मिलके जो शीट है उसको बेड के ऊपर क्या करो, स्प्रेड करो. तो ये जो वर्ड है यहाँ पे ओवर, वो क्या है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और नाउन है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2. क्यों, क्योंकि किसके ऊपर रखा है, बेड के ऊपर. जब किसी, तो ये यहाँ पे क्या है, एक चीज की जो पोजीशन है उसको डिफाइन कर रहा है. सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट. केल्प कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डील्स विद. जो ये लैंग्वेज होती है केल्प, वो किस चीज के साथ डील करती है. फॉर्मल अकेडमिक लर्निंग फॉर कंटेंट एरियाज, फॉर्मल अकेडमिक लर्निंग फॉर इंग्लिश लिटरेचर, नहीं.
फॉर्मल अकेडमिक लर्निंग फॉर इम्प्रूविंग डिबेटिंग स्किल, नहीं। फॉर्मल अकेडमिक लर्निंग फॉर साइकोलॉजी ओनली, नहीं। जो कैल्प होता है इसका पूरा फॉर्म क्या है? कॉग्निटिव अकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये किस में मदद करता है? जो अकेडमिक लर्निंग होती है उसमें। और ये फॉर्मल होती है लैंग्वेज, किसके लिए? जो कंटेंट एरियाज होते हैं उनके लिए। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है इन CLT द टीचर यूजेज टीचर सेंटर क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोच, टेक्स्ट सेंटर क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोच, असेसमेंट सेंटर क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोच। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्लासरूम होता है उसमें जो टीचर होता है वो सबसे कम किस चीज़ को यूज़ करेगा? जहाँ पे टीचर क्या हो? सेंटर में हो। वो स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम यूज़ करेगा, वो टेक्स्ट सेंटर क्लासरूम यूज़ करेगा, असेसमेंट सेंटर क्लासरूम यूज़ करेगा, लेकिन टीचर सेंटर को सबसे कम यूज़ करेगा। डायरेक्ट मेथड यूजेज विच ऑफ द टू कंपोनेंट्स टू टीचर लैंग्वेज? ऑडियो लिंगुअल मेथड, ऑडियो विजुअल, ऑडियो लिंगुअल मेथड GT मेथड, ऑडियो लिंगुअल स्ट्रक्चरल, ऑडियो लिंगुअल और कम्युनिकेटिव। ना तो वो उसको यूज़ करता है, ना वो इसको यूज़ करता है, ना वो इसको यूज़ करता है, क्योंकि ये तीनों खुद में ही एक पर्टिकुलर मेथड है। लेकिन वो किसको यूज़ करेगा? ऑडियो लिंगुअल और ऑडियो विजुअल। ऑडियो लिंगुअल होता है सुन के बोलना, ठीक है, और एक होता है सुन के देखना। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। जो डायरेक्ट मेथड होता है इसमें क्या करते हैं? जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसी में ही आपको डायरेक्ट पढ़ाया जाता है। इसमें सेंटेंस जो होता है वो वर्ड ऑफ यूनिट होती है, इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता। डायरेक्ट मेथड में जो बच्चा होता है उसको सेंटर में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन लताज क्लास अ कन्वर्सेशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू स्टूडेंट्स अजय एंड आभा। सुनील नीड्स टू टेक द कन्वर्सेशन फॉरवर्ड। व्हाट स्किल is Lata testing? Only listening, listening and speaking, listening and reading and only speaking. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 139 का करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। लता की क्लास में कन्वर्सेशन चल रहा है, दो बच्चों के बीच में, कौन है? अजय और आभा। सुनील जो है वो इस पूरे कन्वर्सेशन को आगे की तरफ कैरी फॉरवर्ड करता है। तो लता बेसिकली इसमें क्या टेस्ट कर रही है? वो सुनील ने जब कन्वर्सेशन अच्छे से सुना होगा जो अजय और आभा कर रहे थे, तभी तो वो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। और फिर इसमें स्पीकिंग स्किल्स जो है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नजमा इज कैलकुलेटिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट क्वेश्चन। In one of a question notices the difficulty level has a value of 30. What should Najma to do the item? Item should be kept in the test. नहीं. The item should be discarded from the test. Item is moderately difficult for the test and item is good question for the test. ये कई बार कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो 140 का क्या होगा? 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। इन साइलेंट पीरियड द लर्नर इज प्रोसेसिंग द लैंग्वेज, इज लर्निंग फेशियल एक्सप्रेशन, इज नॉट लर्निंग द लैंग्वेज, इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। जो साइलेंट पीरियड होता है जिसे हम बोलते हैं मौन, जो टाइम चलता है जिसमें बिल्कुल बच्चा बिल्कुल मौन रहता है, तो बच्चा उस टाइम क्या करता है? लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहा होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाषा अधिगम में जो साइलेंट पीरियड होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। ELL स्टूडेंट्स हु आर लर्नर्स बेनिफिट फ्रॉम हैविंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड थ्रू विजुअल मीडियम्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। जो ELL स्टूडेंट्स होते हैं वो विजुअल लर्नर्स बेनिफिट लेते हैं इंफॉर्मेशन को जो कि विजुअल मीडियम के थ्रू प्रेजेंट की जाती है। बेसिकली जो ELL स्टूडेंट्स होते हैं उनको विजुअल्स दिखाए जाते हैं, विजुअल मीडियम की वजह से वो क्या करते हैं? चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है GT मेथड में जो ग्रामर होता है वो कैसे पढ़ाई जाती है? इंडक्टिवली, डिडक्टिवली, विदाउट एक्सप्लेनेशन एंड कवर्टली। तो जो GT मेथड है उसमें हम ग्रामर को हमेशा डिडक्टिवली पढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले नियम बताए जाते हैं और नियम से बच्चों को कहाँ लेके जाता है? उदाहरण की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 144। हरेंद्र गिव्स हिज स्टूडेंट्स फ्लैश कार्ड्स विद डिफरेंट सीन, ही स्पीक्स हिज स्टेटमेंट एंड द स्टूडेंट विद दैट सीन नीड्स टू रेज देयर हैंड। व्हाट स्किल इज हरेंद्र टेस्टिंग? हरेंद्र जो है वो अपने बच्चों को क्या दे रहा है? फ्लैश कार्ड। कैसे? अलग अलग सीन के। वो एक स्टेटमेंट बोलता है और जो बच्चे हैं उनको सीन से मिलता जुलता जो भी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे मिलता जुलता सीन जो है वो अपने हाथ में निकाल के रखना है और अपना हाथ खड़ा करना है। ये कौन सी स्किल है जो हरेंद्र यूज़ कर रहा है? रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और विजुअलाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। जो लिसनिंग जो स्किल है उसको वो यूज़ कर रहा है। क्यों? हरिंदर ने स्टेटमेंट बोला तो बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना। बच्चे फ्लैश कार्ड में जो भी उन्होंने डिफरेंट सीन दिए हैं वहाँ से उस स्टेटमेंट को मैच करके हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए वो इसमें
लिसनिंग स्किल पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। नीलम इज प्लानिंग ए टेस्ट फॉर हर स्टूडेंट्स। शी गिव देम ए सेंटेंस एंड अंडरलाइज ए पर्टिकुलर वर्ड यूजिंग मल्टीपल चॉइस आइटम्स। शी वांट्स देम टू चूज द वर्ड विच इज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। व्हाट सब स्किल ऑफ लैंग्वेज इज नीलम टेस्टिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, वोकेबलरी। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं अ डे फुल ऑफ जॉय, ठीक है, और मैं यहाँ अंडरलाइन कर दूं और यहाँ पे मैं आपको एमसीक्यूज दूं, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि जो डे है उसका अपोजिट बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट, तो आप क्या करेंगे? इस पर टिक कर देंगे। तो उस केस में आपकी वोकेब जो है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको ये बात मालूम हो कि डे जो है उसका अपोजिट नाइट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कन्वे करना चाह रहा है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। गाइडेड रीडिंग फाइंड्स इट्स साइकोलॉजिकल जेनेसिस इन Vygotsky zone of proximal development, Piaget theory of learning, Thorndike theory of learning and Skinner operant condition। इसमें बोला है गाइडेड रीडिंग, जहाँ पे बच्चों को शुरुआती मदद दी जाती है किसमें? पढ़ने में। तो ये किस चीज़ का थ्योरी है? तो वो होता है आपका वाइगोत्स्की का जो ZPD है, ठीक है, पाड़ या ढांचा निर्माण, जहाँ बच्चे को शुरुआती मदद दी जाती है, बच्चा धीरे धीरे जहाँ तक वो ग्रोथ कर सकता है वहाँ पहुँचता है। तो इस पीरियड में बीच में बच्चे से धीरे धीरे मदद जो है उसको कम करना स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। पूनम इज गेटिंग हर स्टूडेंट्स टू डिटेक्ट राइमिंग साउंड्स इन वर्ड। By doing so, she is strengthening their phonological awareness, morphological, graphological और grammar awareness। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑब्वियसली वो क्या फाइंड आउट करने को कह रही है? राइमिंग साउंड। जो अपन स्वर पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए मैं 5-6 वर्ड एक साथ लिख दूं, ठीक है, जैसे लेट सपोज फादर, मदर और इधर मैंने लिख दिया सिस्टर। अब मैं बच्चे से बोलूँ कि इनकी जो राइमिंग साउंड है उसको डिटेक्ट करो, तो वो क्या डिटेक्ट करेगा? लास्ट में सब में क्या आ रहा है? और। तो उसके लिए क्या है? फोनोलॉजिकल अवेयरनेस जो है उसकी क्लियर होनी चाहिए, जैसे हम बोलते हैं स्वर। मॉर्फोलॉजिकल होता है वर्ड्स, ग्राफोलॉजिकल होता है आपके पूरा सेंटेंस। नेक्स्ट है सुधा वॉन्ट्स टू मॉडल फ्लुएंट रीडिंग टू हर स्टूडेंट्स। विच रीडिंग स्ट्रेटेजी शुड शी इम्प्लीमेंट इन हर क्लास? कि जो सुधा है वो क्या कर रही है? मॉडल बता रही है, बच्चों को पढ़ने के लिए मॉडल दिखा रही है कौन सी रीडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो उसको क्लास में इम्प्लीमेंट उसको करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जोर जोर से पढ़ना। जब आप जोर जोर से पढ़ते हैं तो बच्चा क्या करेगा? उस चीज को वापस रिपीट करेगा। दैट इज योर रीड अलाउड। Why is it necessary to teach students strategies for learning new vocabulary? So that students can acquire new vocabulary on their own, so that students can remember the words they learn, so that students can acquire a new language, so that students can become good learner। अब इसमें बोला है ऐसा ज़रूरी क्यों होता है बच्चों को पढ़ाने से कि जो स्ट्रेटेजीज होती हैं उनके थ्रू वो नई वोकैब को ग्रेन कर सके, ठीक है, वो ग्रेस्प कर सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे? नई वोकेबलरी को एक्वायर करेंगे खुद के दम पर, ठीक है। वाई इज इट नेसेसरी टू टीच स्टूडेंट्स? बच्चों को पढ़ाना जो होता है वो क्यों जरूरी होता है? स्ट्रेटेजीज फॉर लर्निंग न्यू वोकेबलरी, जो नई वोकेबलरी है उसके लिए जो स्ट्रेटेजीज होती हैं उसके लिए बच्चों को पढ़ाना जरूरी क्यों है? जिससे कि बच्चे क्या कर सकें? नई वोकेबलरी अपने आप क्रिएट कर सकें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है इफ यू आर अपॉइंटेड एज ए लैंग्वेज टीचर व्हाट टाइप ऑफ रोल विल यू लाइक टू प्ले इन द क्लासरूम? टू डिसाइड व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, to create situation for learning and let the students learn, to reproduce the text before the learners, to act as a facilitator and provide clues whatever necessary, wherever necessary। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगर आपको एक लैंग्वेज टीचर की तरह अपॉइंट किया जाए तो कौन सा रोल है जिसको आप प्ले करना चाहेंगे? ऑब्वियसली ये हम डिसाइड करेंगे कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो ये तो सही है। सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पे बच्चा अधिगम कर सके और बच्चों को याद करने देंगे, तो ये भी सही है। टू रिप्रोड्यूस द टेक्स्ट बिफोर द लर्नर्स, जो बच्चे हैं उनके सामने जो टेक्स्ट है उसको बार बार प्रोड्यूस करना, और एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करेंगे और प्रोवाइड करेंगे क्लूज को जहाँ पर भी ज़रूरत होगी। बेसिकली ये आपका स्कैफोल्डिंग होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर A, B एंड D। आई जस्ट होप गाइज कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हों। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। थैंक यू।